Hey guys, I'm Pravesh and you're watching English by Pravesh. In this video, we talk about how to start speaking. So let's start. Where will you start to speak? कहाँ से हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट करें? ठीक है? So these are points which we discuss in this video. So first is believe in yourself. When you believe in yourself to speak English in front of anybody, your belief convert into belief. Okay, so first you believe in yourself, and I give you a specific mantra about this, that you have to repeat and believe in yourself that I can speak English. Don't judge people. Okay, there is some kind of rumors spread everywhere that when you speak Hindi in front of anyone, in front of someone, he don't judge you. But when you speak in English in front of someone, he judges you because he don't know English and he don't try to understand what are you saying, because you are saying something and information transfer something in English, but they don't understand. That's why they laugh on you, at you. So don't think about so much. You just speak, because this is not happen in a one day, but one day is definitely happen. So एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा. इसी धैर्य के साथ और इसी बिलीव के साथ हमको इंग्लिश को बोलना है. वी हैव टू स्पीक फर्स्ट. विदाउट नॉलेज अबाउट एनीथिंग इन इंग्लिश, we have sufficient knowledge about English because we learn English through of many years. So don't so much think so much and just try to speak English. I can speak English, ये एक मंत्र बना लो और रोज इसको कम से कम 100 बार रिपीट करो. I can speak English, I can speak English, I can speak English. If you believe in yourself, you other people will believe you. If you don't believe in yourself first, other people doesn't matter about your belief. Okay, so when your belief create as a belief, then you will speak definitely. Okay, first second is attitude and mindset. When you do this, believe in yourself. So attitude and mindset comes with knowledge. If you have knowledge about speaking and if you believe in yourself, then attitude and mindset automatically made by you. Okay, so power of practice. After these two, you have to be practice more and more. And I give you another mantra of speaking, that NSRW. L stand for listening, S stand for speaking, R stand for reading, and W stand for writing. If you practice listen and speak, listen and speak, listen and speak, you automatically speak English and words comes out with your from your mouths. So don't skip this rule. Listen and speak, listen and speak, read and write, read and write. Always at least one page you read and one page you write, and try to speak out and listen, watch videos, listen some podcast which we talk about further in videos. So now listen and speak, listen and speak, and what you learn and what you listen and what you read, that you start with a children's book. Because when you start with the children's books, children's in a children's books, you know the basic knowledge about basic vocabulary, basic sentence formations, and basic things in their books. So you start with the children's book, and first you listen and then you speak. First you listen
then you speak and read loudly, not in memorize and memory in your mind. Read loudly, because you know that word is in English, but you cannot pop out from your mouth because there is a hesitation in your mind that where we can comes in wrong way. So wrong and right language has nothing about wrong and राइट। ओके, जब हम हिंदी बोलते हैं तो हम ग्रामर की कोई परवाह नहीं करते, हम सिर्फ बोलते हैं, हम अपनी बात को कन्वे करते हैं और अगले वाले को कन्वेंस करने की कोशिश करते हैं और अगला वाला भी हमें सुनता है। अगर और इंग्लिश को सीखना इसलिए आसान है क्योंकि इंग्लिश को हम स्टार्टिंग से सीखते हुए आए हैं। अगर मैं आपको बोलूँ इटालियन सीखनी है, चाइनीज सीखनी है, तमिल सीखनी है, तेलुगु सीखनी है, इट कुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, बट इंग्लिश को आप इजीली सीख सकते हैं क्योंकि वर्ड्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहले से इन्वॉल्व है और जो वर्ड्स हमें लेने हैं वो हम प्रैक्टिस से और बिलीव इन योरसेल्फ एंड माइंड सेट से हम प्राप्त कर लेंगे। वी गेट इट, बट फर्स्ट यू हैव टू प्रैक्टिस, power of practice, listen, speaking, writing and reading and writing. So these two formulas I give you in this video, and train your tongue। जितना आप अपनी जीभ को ट्रेन करेंगे, बाहर शब्दों को फेंकेंगे, बोलेंगे, बोलेंगे नहीं हेजिटेशन के कारण, तो आप कभी बोल नहीं पाएंगे। अगर स्टार्टिंग में बच्चा जो होता है वो अगर बोलता ही नहीं वर्डों को, चाहे बोलता है वो गलत ही, लेकिन अगर बोलेगा ही नहीं तो वो सीखेगा ही नहीं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश को बाहर लेना है, ठीक है। अब बाहर लेते ज्यादा से ज्यादा वर्डों को बोलना है, स्पीक 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 स्पीक, यही एक रूल मंत्र है। और स्पीकिंग पीक होती है किसी भी लैंग्वेज को सीखने की। लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये स्टार्टिंग के वर्जन होते हैं। पहले हम राइट करते हैं, फिर रीड करते हैं और सुनकर हम अंडरस्टैंड करते हैं। अगर हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे उन चीजों को, तो हम स्पीकिंग में उसको हम बोल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले लिसन, जितना आप सुनोगे उतना ही आप चीजों को अंडरस्टैंड करोगे। डोंट क्रैम इट, क्रैम तो करना ही नहीं है। क्रैम मीन्स रटना, रटना नहीं है चीजों को, अपने आप फ्लो में आपके माइंड में आती जाएंगी। बिकॉज वी हैव अ टू टाइप ऑफ माइंड्स, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। और इन सबकॉन्शियस माइंड में हमारे ऑटोमेटिकली हिंदी के वर्ड्स भरे पड़े हैं। वी हैव लॉट्स ऑफ वर्ड्स वोकैबुलरी इन हिंदी, so we have to repeat English words again and again, and these words are replace Hindi words in your subconscious mind, and you will automatically speak English one day। Okay, this is not going to happen in a one day, but one day is definitely happen। So power of repetition power, this is the power of language। If you repeat something, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़े निशान। ये सब ने हमने सुना है, लेकिन हम उसको रिपीट करना जरूरी है। अगर हम किसी चीज को बार बार रिपीट करते हैं तभी वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। हमें उसके बारे में ज्यादा नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, हमें बस सिर्फ उसको रिपीट करना है। एक एग्जांपल देता हूं मैं। अगर आपको ड्राइविंग सीखनी है, क्या सीखनी है? ड्राइविंग। तो आप सीधा ड्राइव करना शुरू करते हैं, न कि ये देखते हैं कि ये गाड़ी किस कंपनी की है, इसका गेयर किस कंपनी का है, इसमें तेल कहाँ से डलता है, ये पीछे से डलता है, टायर टायर इसके कौन सी कंपनी के हैं। ऐसा तो नहीं करते ना, आप सीधा क्या करते हो? ड्राइव करते हो। यही रूल स्पीकिंग में होता है कि अगर आपको स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग करनी है तो स्टार्ट विद स्पीकिंग। Don't worry about knowledge. Knowledge comes through with your practice, but
first you have to speak. सो ड्राइविंग के पहले अगर हम गाड़ी के बारे में नहीं जानते और एक बार आपको ड्राइविंग आ गई तो आप किसी भी गाड़ी को चला सकते हो। वैसे ही अगर आपको एक बार स्पीकिंग आ गई तो आप किसी के सामने भी कैसे भी इंग्लिश में बात कर सकते हो और यू अंडरस्टैंड ऑटोमेटिकली इन इंग्लिश। सो रिपीटेशन इज अ पावर ऑफ लैंग्वेज। रिपीट करना ही आपको इंग्लिश सिखाता है। जो आप रिपीट करते हो वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टिक हो जाता है और वहीं से फिर आप बिना सोचे इंग्लिश के शब्दों को बाहर फेंकते हो और बोलते हो। ठीक है। सो ट्रेन योर टंग फर्स्ट एंड देन पावर ऑफ रिपीटेशन। रिपीटेशन इज मस्ट बी रिक्वायर्ड। और एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं रिपीटेशन का। जैसे कि एक भक्त होता है जो कि भगवान की भक्ति करता है, तो अगर वो एक बार बोलेगा ओम नमः शिवाय या फिर वो 11 या 100 बार बोलेगा ओम नमः शिवाय, तो ओम नमः शिवाय शिव जी तक बात नहीं पहुंचेगी। लेकिन अगर वो इसी बात को अगर करोड़ों बार बोलता है, लाखों बार, करोड़ों बार बोलता है, तो वह बात शिव जी तक पहुंचती है। और ये हमने हमने पहले देखा हुआ है टीवीज में। ऐसे तो एक ही वर्ड था, जैसे कि मैंने आपको एक ही वर्ड दिया, आई कैन स्पीक इंग्लिश। यह बात तभी आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचेगी जब आप इसको रिपीट 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 करेंगे लाखों करोड़ों बार, तो आप अपने आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। यू डोंट नीड एनी ग्रामर, यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ knowledge about English. If you do that regularly, you have to speak English. So automatically comes out words from your mouth if you follow these rules. So that's all about this video. I hope you understand where will you start to speak, कहाँ से आपको स्टार्ट करना चाहिए और आज से ही आपको स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपने यह you should have to start from today, because don't think so much about others does not others also does not know about English. So जिसके सामने आप बोल रहे हैं उसको भी इंग्लिश नहीं आती है। अगर आप उस पर ये एहसान करेंगे, उसके सामने इंग्लिश बोलेंगे, तो उसको भी क्या पता कुछ ना कुछ दिमाग में इंग्लिश के वर्ड्स पड़ जाए और वो भी जब उसको जरूरत पड़ेगी वो बोल सकता है। ठीक है। सो नॉलेज इज अ डिफरेंट पार्ट एंड स्पीकिंग इज अ डिफरेंट पार्ट। स्पीकिंग इज एन आर्ट। स्पीकिंग इज एन art, and knowledge is a comes with subject. So subject knowledge होना बहुत जरूरी है, लेकिन बोलने की कला भी होना बहुत जरूरी है। स्पीकिंग एक स्किल होती है और नॉलेज थ्रू प्रैक्टिस एंड थ्रू योर ट्रेनिंग ऑटोमेटिकली आप सीखते रहते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही था। काफ़ी आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट स्पीकिंग। सो और इससे आगे भी हम क्लियर करते जाएंगे आपके व्यूज़ कि कैसे आपको स्पीकिंग करनी है, क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या आपको नहीं पढ़ना चाहिए, कितने टाइम के लिए आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, उसके लिए हम आगे की वीडियोस बनाएंगे। एंड अगले वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई एंड हाउ। हाउ आपका क्लियर मैं करूंगा, व्हाई आपको क्लियर खुद करना पड़ेगा। यू हैव रीजन। If you don't have any reason to speak English, you cannot speak English. If you have that reason for speaking, you will definitely speak in a one day. Not in a one day, one day definitely. So that's all about this video, and I hope you understand. So good luck and keep watching.